دختر مشرق اسلام کی پہلی خاتون چیئرپرسن پیپلز پارٹی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 16ویں برسی پر گڑھی خدا بخش میں شہداء کے مزار کے سامنے پنڈال سج چکا ہے۔ ملک بھر سے قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ دختر مشرق اسلامی ممالک کی پہلی خاتون چیئرپرسن پیپلز پارٹی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آج 16ویں برسی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے آجز جمالی گڑھی خدا بخش سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ جی آجز جمالی بتائیے گا۔ جی دیکھیں، گڑھی خدا بخش میں ایک بہت بڑا میلے کا سما ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 16ویں برسی پر جمع ہیں اور یہ ملک بھر سے قافلوں کی آمد کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ 2 بجے جلسے کا وقت ہے۔ اس جلسے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ آج خاص طور پہ اس پاور شو کی خصوصی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے اپنے لاہے عمل کا اعلان کرے گی آج کے جلسے میں۔ اس وقت میں مزار کے باہر کھڑا ہوں۔ مزار کی جانب لوگوں کی بڑی تعداد ہے، بہت بڑا رش ہے۔ جو لوگ اندر مزار میں جا رہے ہیں اور پھولوں کے چادر چڑھا رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو مزار ہے، بینظیر بھٹو، مرزا بھٹو، شاہنواز بھٹو کے مزاروں پر لوگ جا رہے ہیں۔ چونکہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ میرے عقب میں یہاں سے آپ کو اسٹیج نظر آ رہا ہوگا۔ ایک بہت بڑا اسٹیج سجایا گیا ہے۔ لوگ اسٹیج کے ارد گرد ضرور جمع ہیں، لیکن چونکہ جلسہ ابھی شروع نہیں ہوا تو لوگ آ رہے ہیں ابھی بھی قافلوں کی صورت میں۔ یہ میرے اس طرف واک تھرو گیٹس لگے ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ یہاں سے لوگ جو ہے مزار کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ واک تھرو گیٹس سے گزر کر لوگ مزار کے اندر جا رہے ہیں اور پھر مزار سے واپس آ رہے ہیں۔ تو سیکیورٹی کے اس طرح انتظامات ہیں کہ پورے گڑھی خدا بخش کے 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ چاروں اطراف سے سیکیورٹی تعینات ہے۔ جلسہ میں ہر عمر کے، ہر مکتبہ فکر کے لوگ موجود ہیں۔ خواتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد میں آج دیکھ رہا ہوں کہ جلسے میں موجود ہے۔ بچے ہیں، بزرگ ہیں، ہر عمر کے لوگ اس جلسے میں شریک ہیں۔ 16ویں برسی ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی، اور اپنے عروج پر تو ابھی جلسہ میں نہیں کہہ سکتا، چونکہ ابھی بھی خاص طور پہ سندھ کے مختلف علاقوں سے لوگ بسوں میں، ویگنوں میں اور گاڑیوں میں آ رہے ہیں۔ لوگوں کی آمد کا سلسلہ ابھی تک بھی جاری ہے۔ لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نمائندے آجز جمالی گڑھی خدا بخش سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود تھے، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، بڑی تعداد میں بڑے بزرگ، بچے، خواتین وہاں پر شرکت کر رہے ہیں۔ آج اس یہ بھی بتائے گا کہ 2 بجے جو ہے جلسے کا وقت دیا گیا ہے، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ 2 بجے تک پہنچ جائیں گے، اور بلاول بھٹو اور باقی شخصیات کی آمد کب تک متوقع ہے؟ جی، لوگوں کی تو ابھی بھی بہت بڑی تعداد اس پنڈال میں موجود ہے، اس پورے گراؤنڈ میں موجود ہے مزار کے سامنے، لیکن جلسے کا وقت 2 بجے ہے۔ 2 سے 3 بجے تک جلسہ شروع ہوتا ہے، عموماً یہی صورتحال ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر مختلف رہنما خطاب کرتے ہیں۔ آخر میں بلاول بھٹو زرداری خطاب کرتے ہیں۔ تقریباً مغرب کا وقت ہو جاتا ہے اس جلسے کو، اور مغرب کے وقت پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو یاد کیا جاتا ہے۔ جو ان کی شہادت کا وقت ہوتا ہے مغرب کے وقت، اس وقت پھر 1-2 منٹ کی خاموشی اختیار کی جاتی ہے، اور اس وقت پھر یہ جلسہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کی پوری قیادت اس وقت نو ڈیرو ہاؤس میں موجود ہے، اور نو ڈیرو ہاؤس میں جو یہاں سے گڑھی خدا بخش سے کچھ فاصلے پر ہے، نو ڈیرو ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری مرکزی قیادت موجود ہے۔ ملک کے تمام حصوں سے آئے ہوئے مرکزی رہنما نو ڈیرو ہاؤس میں موجود ہیں۔ ایک اجلاس بھی ہے نو ڈیرو ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا آئندہ لائے عمل کے حوالے سے، اور پھر نو ڈیرو ہاؤس سے باقاعدہ ایک قافلے کی صورت میں لوگ یہاں پہنچتے ہیں۔ یہ تمام قائدین پہنچتے ہیں، اسٹیج پہ پہنچتے ہیں، پھر جلسہ باقاعدہ شروع ہوتا ہے۔ شروع میں بہت سارے لوگ خطاب کرتے ہیں، آخر میں بلاول بھٹو، آصف زرداری، یہ لوگ آتے ہیں جو خطاب کرتے ہیں، اور مغرب کے وقت اس جلسے کا اختتام ہوتا ہے۔ جی
पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत जलसे से खिताब करेगी और मगरिब के वक्त इस जलसे का अख्ताम होगा। आज जमाली हमें अपडेट कर रहे थे घड़ी खुदा बख्श में, वो हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। दुख्तर मशरिक इस्लामी ममालिक की पहली खातून चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी पर घड़ी खुदा बख्श में शोहदा के मज़ार के सामने पंडाल सज चुका है। मुल्क भर से काफ़िलों की आमद का सिलसिला भी जारी है। आपको आगाह कर रहे हैं कि जलसा आज दोपहर 2 बजे शुरू हो जाएगा। आज इसे भी बताएगा कि सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात हैं और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए कैसे इंतजामात किए गए हैं, कितनी भारी नफरी को यहाँ तलब किया गया है। जी बहुत बड़ी नफरी है सिक्योरिटी की। कल यहाँ पे आईजी सिंध खुद भी आए थे सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेने के, और तमाम अजला की पुलिस यहाँ मंगवाई गई है। हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार हर तरह की सिक्योरिटी के लिए जो है मौजूद हैं। सिक्योरिटी गेट्स लगाए गए हैं, वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। सख्त तलाशी का एक अमल होता है, इन तमाम गेट्स से गुज़र कर लोगों को पहुंचना पड़ता है। यहाँ मज़ार के इर्द गिर्द गाड़ियों की जो है पार्किंग का कोई इंतज़ाम नहीं है। काफ़ी किलोमीटर दूर जो है गाड़ियों को रोकना पड़ता है और यहाँ लोग गाड़ियाँ अपनी बाहर छोड़ के यहाँ पर पहुँचते हैं। तो सिक्योरिटी के बिल्कुल फुल प्रूफ इंतज़ाम हैं और पूरे पंडाल के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं। जी आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे घड़ी खुदा बख्श में, हमारे साथ बराहे रास्त मौजूद थे। आजिज़ आपका बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से आगाह करते चलें कि दुख्तर मशरिक इस्लामी ममालिक की पहली खातून चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 16वीं बरसी पर घड़ी खुदा बख्श में शोहदा के मज़ार के सामने पंडाल सज चुका है। बाथ आइलैंड में गैस पाइपलाइन फटे 12 घंटों से ज़ायद गुजर गए। गैस पाइपलाइन की मरम्मत 12 घंटों में भी मुकम्मल ना की जा सकी। क्लिफ्टन और डीएचए के मुख्तलिफ फेजेस में गैस की फराहमी मुतासर है। दहली कॉलोनी, ओल्ड सिटी, माई कोलाची और सुल्तानाबाद में गैस सप्लाई मअतल है। सुई सदरन गैस कंपनी की टीम मरम्मती काम में मसरूफ दिखाई दे रही है। आपको बताते चलें कि बाथ आइलैंड में गैस पाइपलाइन को फटे 12 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजर गया है। गैस पाइपलाइन की मरम्मत 12 घंटों में भी मुकम्मल ना की जा सकी। क्लिफ्टन और डीएचए के मुख्तलिफ फेजेस में गैस की फराहमी मुतासर है। दिल्ली कॉलोनी, ओल्ड सिटी, माई कोलाची और सुल्तानाबाद में गैस सप्लाई मअतल है। अतराफ के इलाकों में गैस बहरान चल रहा है और सप्लाई भी मअतल की गई है। गैस पाइपलाइन फट गई है जिसकी वजह से ये सूरत हाल पेश आई है। सुई सदरन गैस कंपनी की टीम मरम्मती काम में मसरूफ़ है और कहा जा रहा है कि काम तेज़ी से जारी है, मगर 12 घंटों का वक्त गुजर चुका है लेकिन अभी तक मरम्मत का काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका। क्लिफ्टन और अतराफ के इलाके जो हैं वो खास से मुतासर हैं। अतराफ के इलाकों में दिल्ली कॉलोनी, ओल्ड सिटी, माई कोलाची और सुल्तानाबाद शामिल हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी काविश, बताएगा कि गैस पाइपलाइन फटने की कोई वजूहात सामने आई हैं, कोई तहकीकात हुई हैं इस पर? बिल्कुल देखिए, गुज़श्ता रोज़ क्लिफ्टन बाथ आइलैंड में यहाँ पर जो ज़ेर ज़मीन गैस पाइपलाइन थी वो 16 इंच की फटी और जिसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी और कई इलाकों में गैस जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जिन लोगों से हमने बात की, इंजीनियर्स भी थे, जो कुछ सुई सदन गैस हुकाम के कुछ लोग भी थे, उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ देने से तो इनकार किया। अलबत्ता वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि गुज़श्ता रात से मरम्मती काम जो है वो शुरू हो चुका है और इस वक्त तक यानी कि तकरीबन 10 से 12 घंटे जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन ताहाल ये काम जो जारी है और बताया जा रहा है कि ये तकरीबन मज़ीद कुछ घंटे लग सकते हैं और ये सिलसिला शाम या रात तक जा सकता है। मैं अपने कैमरा मैन अगर मनान से कहूँ तो दिखा सकें, यहाँ पर जो मशीनरी है वो पीछे काम करती हुई हमें दिखाई दे रही है। 2 हिस्सों से जो पाइपलाइन है वो मुतासर हुई थी, 2 हिस्सों से पाइपलाइन मुतासर हुई थी और एक हिस्से का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, यानी कि जो हिस्सा मुतासर हुआ था उसको तब्दील करके नई पाइपलाइन नया हिस्सा डाल दिया गया है। इसके आगे का जो हिस्सा है वहाँ पर इस वक्त ये काम जो है वो जारी है और यहाँ जो हमने हुकाम से बात की, इंजीनियर से बात की, तो वो बज़ाहिर तो वो कैमरे में आके बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन उन्होंने जब हमसे ऑफ द कैमरा बात की तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ पर मरम्मती काम जारी है और मज़ीद कुछ वक्त लग सकता है। ताख़ीर की वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि
यहाँ पर चूँकि साथ ही जो है वो नाला भी है और नाले की वजह से भी जो है वो ताख़ीर हो रही है, और इस हवाले से जो इंजीनियर्स है या हुकाम है उनका कहना है कि ये काम जो है वो रात को ही मुकम्मल हो जाता, लेकिन नाले की वजह से चूँकि जब ये पाइपलाइन फटी तो जो नाले का पानी है वो गैस पाइपलाइन में भी दाखिल हुआ, जिसकी वजह से फिर उस गैस पाइपलाइन से नाले के पानी को निकालने के लिए हमने देखा कि यहाँ पर प्रेशर मशीन का इस्तेमाल किया गया और यहाँ से प्रेशर दे के उस लाइन को क्लियर किया गया, और उसके बाद ताहाल ये काम जारी है और बताया जा रहा है कि मज़ीद कुछ वक्त लगेगा। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो पाइपलाइन मुतासिर उसके बाद गैस की जो है वो एक बहरान उठता हुआ हमें दिखाई दिया, यानी कि मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद कर दी गई है। क्लिफ्टन के इलाके हैं, DHA के मुख्तलिफ इलाके हैं, इसके साथ साथ बात कर लीजिए ओल्ड सिटी एरिया है, इसके साथ और जो केमारी के अतराफ़ के इलाके हैं वहाँ पर भी जो है वो फौरी तौर पर जो है वो गैस की बंदिश की गई है। तो इस हवाले से शहरियों को यकीनन मुश्किलात का सामना है। सुबह के औकात में देखते हैं कि लोग जो है वो दफातर जाते हैं तो ज़ाहिर है कि घरों में नाश्ते वगैरह की तैयारी होती है, तो इस हवाले से भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात है, और लोगों की भी यही अपील है कि जल्द अज जल्द ये काम जो मरम्मती काम मुकम्मल हो ताकि गैस की फराहमी बहाल हो सके। गैस की फराहमी बहाल हो सके। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। काविश मेमन आपको आगाह कर रहे हैं कि बाथ आइलैंड में गैस पाइपलाइन फटे 12 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजर गया है। गैस पाइपलाइन की मरम्मत 12 घंटों में भी मुकम्मल ना की जा सकी। क्लिफ्टन और DHA के मुख्तलिफ फेजेस में गैस की फराहमी मुतासर है। काविश ये भी बताएगा कि दिल्ली कॉलोनी, ओल्ड सिटी और इसके अलावा और कौन से इलाके जो हैं वो गैस मुतासर हुई है वहाँ पर? बिल्कुल देखें, ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें लियारी के बेशतर इलाके हैं, आगरा ताज, बिहार कॉलोनी, चाकीवारा, कुमारवारा, ली मार्केट, भीमपुरा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ सुल्तानाबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर गैस की फराहमी बंद हो गई है। फिर DHA के मुख्तलिफ फेजेज है, क्लिफ्टन के मुख्तलिफ हिस्से हैं जहाँ पर इस पाइपलाइन के जरिए गैस फराहम की जा रही थी, तो पाइपलाइन में ज़ाहिर है फटी है, तो जिसकी वजह से गैस जो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बंद कर दी गई है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। वैसे ही गैस की लोड शेडिंग की वजह से भी लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि लोग जो है वो मुतबादिल के तौर पर फिर LPG का इस्तेमाल करते हैं। LPG की कीमत भी ज़्यादा है, तो इस वजह से लोगों को काफ़ी कंसर्न है, और कहा जा रहा है कि जो वैसे ही गैस के प्रेशर में कमी और गैस की बंदिश का सामना करना पड़ता है। अब कि नया इम्तहान खड़ा हो गया, तो शहरियों का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि फौरी तौर पर ये काम मुकम्मल हो ताकि जो है वो गैस के जो है फराहमी को मुमकिन हो सके। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टीम है वो गुज़श्ता रात से ही यहाँ पर काम कर रही है। जब ये वाक़या हुआ उसके बाद से हमने देखा कि इस हवाले से SSGC का भी मौक़िफ़ सामने आया और कहा गया कि यहाँ पर मुरम्मती काम गुज़श्ता रात से ही शुरू हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया कि जो ताख़ीर की वजह सामने आ रही है, 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और काम अब तक मुकम्मल नहीं हुआ, तो हमने ऑफ द कैमरा जब बात की तो यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर चूँकि गैस पाइपलाइन के साथ ही जो नाला है और नाले की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। जो इंजीनियर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो गैस पाइपलाइन में नाले का पानी भी भर गया था, तो जो मशीन मेरे आप अकब में देख सकते हैं वो मशीन के ज़रिए जो है वो पानी निकाला गया और उसके बाद ताहाल ये काम जारी है। एक हिस्से का काम हो चुका है, अगर मैं ये कहूँ 50 से 60% जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है। बाकी जो 40% काम है उसमें मज़ीद कुछ वक्त दरकार है और बताया जा रहा है कि शाम तक मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो लोगों जो इलाके मुतासर हुए थे गैस की लोड शेडिंग या गैस की अदम फराहमी की वजह से, तो कहा जा रहा है कि जैसे ये काम मुकम्मल हो जाएगा उससे कुछ ही देर बाद जो है वो गैस की फराहमी जो मुतासर इलाके हैं वहाँ पर बहाल कर दी जाएगी। गैस की फराहमी कुछ घंटों तक बहाल कर दी जाएगी। ताहाल काम जारी है। आपको आगाह कराए हैं कि बाथ आइलैंड में गैस पाइपलाइन फटे 12 घंटों से ज़ायद गुजर गए हैं। गैस पाइपलाइन की मरम्मत 12 घंटों में भी मुकम्मल ना की जा सके। क्लिफ्टन और अतराफ़ के इलाके शदीद मुतासर हुए हैं। काविश मेमन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। क्लिफ्टन में गैस की पाइपलाइन फटने से माई कोलाची, DHA, सुल्तानाबाद में गैस की फराहमी ताहाल मुअत्तल है। सुल्तानाबाद के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी गैस सिलेंडर और लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आयमा खान से, जो इस वक्त सुल्तानाबाद में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, क्लिफ्टन में गैस की पाइपलाइन फटने से शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्लिफ्टन बाथ आइलैंड के इलाके में 16 इंच की जो गैस की पाइपलाइन है वो फट गई थी, जिसके बायस जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाके जिनमें बिलखसूस माई कोलाची का इलाका, DHA, साथ ही साथ जो है वो सुल्तानाबाद के इलाके जो है वो मुतासिर हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानाबाद में। यहाँ पर मेरे साथ शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। गैस तो अभी ये लेन पड़ गया, इसकी वजह से थोड़ा जो है ना ये दूसरा दिन है, थोड़ा तकलीफ है। लेडीज़ को भी यानी खाना पकाने में तकलीफ हो रहा है गैस का। अभी फिर से लकड़ियाँ लेने शुरू कर दिया लोगों ने,
और सिलेंडर अभी जो है ना आगे दुकान है वहाँ पे आप जाओगे रश लगा हुआ है। रात को भी उनके पास भी गैस ख़त्म हो गया था, जितना गैस उन लोगों ने लगाया था मिसाल रात को ख़त्म हो गया। अल्लाह काम से गुजारिश है कि जो है ना ये लेन जो पड़ गया है पुल के नीचे नाले में, इसके ऊपर काम तेज़ी से जारी रखे, मेहरबानी होगी। और इसके अलावा भी आम दिनों में भी गैस का प्रेशर कम है। रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक यानी गैस नहीं होते बिल्कुल। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हम इस वक्त सुल्तानाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पे जो पाइपलाइन फटी है उसके बायस यहाँ पे गैस की बंदिश का सिलसिला जारी है। तमाम SSGC की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गैस की पाइपलाइन का मुरम्मती काम जो है वो तेज़ी से किया जा रहा है। अल्ताहम यहाँ के जो इलाका मकीन है वो खासी दुश्वारी में मुब्तला है। इनका यही कहना है कि हम जो है वो सिलेंडर भरवा रहे हैं, लकड़ियों पर खाना बना रहे हैं। ख़वातीन को जो है वो इस वक्त खासी परेशानी जो है वो उठानी पड़ रही है। जी इसी हवाले से बात करें और आपको बताएं कि क्लिफ्टन में गैस पाइपलाइन फटने से दिल्ली कॉलोनी में भी गैस फराहमी मुअत्तल हो गई है। शहरियों को सर्द मौसम में शदीद अजियत का सामना है। खाना होटलों से लाने या गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। इस हवाले से मसीह जानेंगे नुमाइंदा फरहान खान से, जो इस वक्त दिल्ली कॉलोनी में मौजूद हैं। गुज़िश्ता रात जो है वो क्लिफ्टन पे बाथ आइलैंड के करीब जो है वो 16 इंच की बड़ी गैस की पाइपलाइन फटने का वाक़या पेश आया, जिसके बाद जो है वो क्लिफ्टन के अतराफ़ के जो है वो बेशतर इलाके जो है वो गैस की फराहमी से जो है मुअत्तल हो गए। शदीद मुतासिर इलाकों में जो है वो एक इलाका दिल्ली कॉलोनी भी है। जिस वक्त जो है मैं अभी दिल्ली कॉलोनी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो सुबह के औकात से ही जो गैस की फराहमी जो है वो बंद है। इस वक्त जो हमारे साथ इलाके के काउंसलर साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। गैस की बंदिश ये इस वजह से हुई जो कि कल बाथ आइलैंड के अंदर गैस की लाइन फटी 16 इंच की, उसकी वजह से कल से लेकर अब तक जो है वो गैस की लाइन जो है मुकम्मल बंद है गैस सप्लाई। मैंने जो इनके जो DMD वगैरह हैं अफसरान GM उनसे रब्ता किया तो उस पर उन्होंने बताया कि यहाँ बाथ आइलैंड में लाइन फटी है, जिसकी वजह से 16 TBS तकरीबन 50% कराची का एरिया जो है वो इस वक्त ऑफ है इस लाइन के फटने की वजह से। यहाँ पर इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि घरेलू सार्फिन ज़ाहिर सी बात है जब घरों में गैस नहीं होगी तो नाश्ता खाना सबको परेशानी का सामना है। ख़वातीन सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशानी का शिकार है। तो मेरी उन तमाम अफसरान से और हुक्काम से ये दरख्वास्त होगी कि खुदारा इस बात का नोटिस लेकर इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करके गैस की फराहमी को जल्दी जो है वो बहाल किया जाए। जी बिल्कुल, ये काउंसलर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि गैस की फराहमी को जो है वो जल्द से जल्द बहाल कराया जाए, जिसके बाद जो है वो इलाके में जो है वो गैस मसाइल से जो है वो शहरियों को निजात मिल सके। यही मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द गैस की फराहमी को बहाल किया जाए, जबकि SSG की जानिब से इस मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है और उनका भी यही मौक़िफ़ है कि शाम तक जो है वो गैस की लाइन को जो है वो मरम्मत करके गैस की फराहमी को बहाल करें। आपको बताएं कि ज़िला शर्की में तीसरे रोज़ भी स्क्रूटनी का अमल जारी है। सूबाई असम्बली की 9 और कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों पर 1 दर्जन से ज़ायद उम्मीदवार अपने कागजात की जांच पड़ताल के लिए RO से रुजू कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद से। आज स्क्रूटनी का तीसरा रोज है। उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। RO से उम्मीदवार रुजू कर रहे हैं ताकि उनकी जो स्क्रूटनी का अमल है वो मुकम्मल किया जा सके। इस वक्त मेरे साथ आज़ाद उम्मीदवार सरवत इसरार मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। आपको पता है कराची के तमाम मसाइल एक से ही हैं। कहीं पर भी आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ ये मसला है या ये ज़्यादा है। हर जगह तकरीबन सेम मसाइल हैं और उनको जो है वो एड्रेस करने के लिए आपको एक ही स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी, चाहे आप कराची के किसी भी इलाके से लड़ें, आपके प्रॉब्लम सेम है। आपको नहीं लगता कि सियासी जमातें जो हैं वो अपना किरदार पहले भी आया कर चुकी हैं आवाम पर, और सियासी जमातें जो हैं वो जिस तरह से काम करती हैं, जिस तरह से उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो लोगों के सामने होते हैं। दूसरे ये कि इंडिपेंडेंट लोग जो होते हैं ना, उनके एजेंडाज नहीं होते इस तरह के कि उनको दोबारा आना है बल्कि वो ये सोचते हैं कि आवाम की खिदमत किस तरह की जाए। जी बिल्कुल, आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए जो है वो मैदान में उतरी हुई है। अगर ज़िला शर्की की बात की जाए तो ज़िला शर्की में 4 NA और 9 PS लगते हैं, जहां पर आज स्क्रूटनी का तीसरा रोज है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस जानिब जो है लोगों की आमद का सिलसिला जो है वो इस वक्त भी जारी है। लोग आ रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं। अगर हम PS 103 की बात करें तो PS 103 के अंदर तकरीबन 9 उम्मीदवार जो है वो आज आएंगे और अपने कागजात नामजदगी जो जमा हुई है उनकी स्क्रूटनी कराएंगे, जबकि NA 235 में भी जो है तकरीबन 6 के करीब उम्मीदवार हैं जो कि आज आएंगे और अपनी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल करवाएंगे। इसी तरीके से दीगर PS हैं, वहाँ पर भी जो है मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के जो कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, वो आएंगे जिन्होंने यहाँ पर अपने कागजात जमा करवाए, वो अपनी स्क्रूटनी के अमल को आज ही मुकम्मल करवाएंगे। जी
कभी कभी असatज़ा की ज़रूरत पड़ जाती है, ख़ास तौर पर जब मरदम शुमारी, खाना शुमारी या फिर इलेक्शन हो। आम इंतख़ाबात से मुतालिक प्रिज़ाइडिंग अफसरान को नॉर्थ नाज़माबाद कम्प्रिहेंसिव स्कूल में तरबियत दी जा रही है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगी अक्सर शाहिद। इंतखाबात की सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी हैं, जोश खरोश पर जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। इंतखाबात में जैसे कि कागजात नामजदगी का सिलसिला चल रहा था, फिर जांच पड़ताल का सिलसिला चल रहा था, तो वहीं जो इंतखाबात होंगे उसके लिए प्रिजाइडिंग अफसर्स और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर्स की भी क्लासेस दी जा रही हैं। मैं इस वक्त नॉर्थ नाज़माबाद कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ जो गवर्नमेंट अफसर हैं या असatज़ा हैं या पोलियो स्टाफ है, उनको जो है वो वैसे तो उस्ताद जो है वो पढ़े लिखे होते हैं, बाशऊर होते हैं, लेकिन कभी असatज़ा को भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि मर्दम शुमारी हो या खाना शुमारी हो। इसलिए इनको ट्रेनिंग देने के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मास्टर ट्रेनर सैयद रफ़त अली हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे। बताइएगा कि कितने मराहिल पर जो है ये ट्रेनिंग मुश्तमिल है? ये दो फेजेस हैं इसके ट्रेनिंग के। पहला फेज़ जो कि 11 जनवरी तक चलेगा, पोलिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग का होगा। दूसरा फेज़ 13 जनवरी से चलेगा, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सीनियर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग होगी। अच्छा, ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है वो कम से कम कितने आपको एपीओ और पीओ की ज़रूरत है, और किस तरह यहाँ पर जो वो ट्रेनिंग की क्या रोल्स हैं? तकरीबन 11,000 से 12,000 तक के दरमियान ये हमें अमले की ज़रूरत है। और दूसरा जो बात है कि क्या रूल्स हैं ट्रेनिंग के, ट्रेनिंग जो है ओरिएंटेशन है आज की, ये हमारी सुबह 10 बजे से 1 बजे तक की पोलिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग चल रही है। इसमें इनको वो तमाम तर मराहिल से आगाही दी जाएगी जो पोलिंग के दिन और पोलिंग से पहले जो इनको काम करने होंगे। यकीनी तौर पर जो है वो लोग आते हैं वोटर्स, उनकी जो है वो यही कोशिश होती है कि वो अपने उम्मीदवार को वोट दें। यहाँ पर जो सारे प्रेसिडेंट ऑफिसर्स को क्लासेस दी जाती हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो है वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बताए गए हैं। बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर कि किस तरीके से जो है वो कौन से रूल को फॉलो करना है, ताकि इंतखाबात में जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो बदमज़गी ना हो। 11,000 पे जो है वो 11,000 प्रिजाइडिंग अफसर पे की ट्रेनिंग मुश्तमिल है, जिसका पहला मरहला जो है वो 11 जनवरी को इख्तिताम पजीर होगा। दूसरा मरहला फिर जो है वो 13 जनवरी से स्टार्ट होगा। इसी तरह जो इंतखाबात का ये सिलसिला है ये 8 फरवरी तक जो है वो चलता रहेगा और सरगर्मियाँ जो है वो अपने उरूज पर जारी रहेंगी। जी। डीसी केमाड़ी ऑफिस में कागजात की स्क्रूटनी। आज भी मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों समेत आज़ाद उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी का अमल जारी है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद इस वक्त डीसी केमाड़ी ऑफिस में मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। आज इलेक्शन 2024 में कागजात नामजदगी की जो स्क्रूटनी का अमल है वो इस वक्त डीसी केमाड़ी ऑफिस में जो है जारी है। कौमी के 2 और सूबाई असम्बली की जो 5 नशिस्तें हैं उसके लिए जो है उम्मीदवारों की जानिब से जो है अपनी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कराने के लिए जो है यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों और जो है मजहबी जमातों समेत आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से जो है यहाँ पर जो है आने का सिलसिला जारी है और वो यहाँ पर जो है स्क्रूटनी कराने पहुँचे हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो आज NA 242 से जो है MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल जो कि अपने जो है कागजात की जो स्क्रूटनी है उसका मुकम्मल करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। और इसी के साथ NA 242 से ही जो है PTI के सरबुलंद खान भी जो है वो इस वक्त जो है कागजात की स्क्रूटनी कराने यहाँ पर पहुँच चुके हैं। साथ ही साथ आज जो है NA 243 से नून लीग के अख्तर हुसैन जदून और JUIF के कारी उस्मान साहब भी जो है वो NA 243 से जो है स्क्रूटनी कराने यहाँ पर पहुँचेंगे। इनको जो है दोनों को 2 बजे का वक्त दिया गया है। साथ ही साथ जो है PS 111 से 11 उम्मीदवार, जबकि PS 112 से 9, PS 113 से 20 उम्मीदवार और PS 114 से 13 उम्मीदवारों को जो है कागजात की मंजूरी के लिए यहाँ पर आज बुलाया गया है। और PS 115 से 10 उम्मीदवारों को कागजात की जो है मंजूरी के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो है 30 जो है दिसंबर तक स्क्रूटनी का अमल जारी रहेगा और उसके बाद जो है जो लिस्ट तैयार की जाएगी वो यहाँ पर लगा दी जाएगी। हमने देखा कि यहाँ पर जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके कमरे के बाहर जो है पुलिस की जो है 2-2 पुलिस एहलकार भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ जो है स्क्रूटनी का अमल जो है यहाँ पर सुबह से ही शुरू हो चुका है और वक्फे से जो है उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर के कमरों में बुलाया जा रहा है और उनके कागजात चेक किए जा रहे हैं। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तिब्बी माहिरीन ने वालिदैन को बच्चों की पैदाइश में वक्फे का मशवरा दे दिया। डॉक्टर गुलाम अब्बास नकवी कहते हैं वक्फे से माँ और बच्चा दोनों मुकम्मल सेहतमंद रहते हैं। इस हवाले से शहरियों में आगाही की ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं इरफान अब्बासी से।
जी बिल्कुल, तिब्बी माहिरीन भी इस बात पर ना सिर्फ मुत्तफिक हैं बल्कि जोर देते हैं कि जो माँ है वो अगर एक बच्चा की पैदाइश होती है तो दूसरे बच्चे की पैदाइश के दरमियान में कम से कम 2 से ढाई साल का वक़्फ़ा रखना चाहिए। उससे माँ भी सेहतमंद रहती है और फिर बेहतर तरीके से जो बच्चे हैं उनकी परवरिश के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। ये मेरे साथ डॉक्टर अब्बास नकवी साहब मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं सेंट्रल के अंदर। देखिए, मैं इसमें ये बात तो नहीं कह सकता कि हम बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए, लेकिन कोशिशें जारी हैं, कंटिन्यूस बेस पे हो रही है। अब वो चीज़ें हो रही हैं, तो जैसे दूसरे मसले मसाइल हैं, इसमें भी बहुत बड़ा मसला है। असल मसला यही कि लोगों तक इसकी बात की आगाही देना, अवेयरनेस देना, पहुंचाना चीज़ों को, ख़ासकर हमारी जो वो वाले कम्युनिटीज़ है जो कि करीब हैं और स्लम एरियाज़ में और कच्ची आबादियों में रहते हैं, उन तक अभी तक हमारा मैसेज उस हद तक नहीं गया। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है LHWs, क्योंकि LHWs की जो जॉब है या जो उनका काम की नौयत है वो घर घर जाते हैं लोगों को, और उनका एरिया भी यही होता है कि जो स्लम एरिया हो, जो कच्ची आबादियाँ हो, उस तक ज़्यादा जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन तक इनकी अप्रोच होनी चाहिए। तो बिल्कुल जी, महकमा शाह सिंध के तहत जितने भी BHUs चलते हैं, डिस्पेंसरियाँ चलती हैं, वहाँ हमने देखा कि फैमिली प्लानिंग के हवाले से वहाँ मुमकिन तौर पर डॉक्टर बैठे होते हैं, वहाँ मुमकिन तौर पर वहाँ का स्टाफ बैठा होता है जो आपको बेहतर से बेहतर मशवरे देता है। ज़रूरत इस बात की है कि जो ख़वातीन हैं, मर्द हैं, हमारे जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझें कि जब तक हम इनके मशवरों पर अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम अपने मुआशरे को सेहतमंद नहीं बना सकते, हम अपनी माओं को सेहतमंद नहीं बना सकते। जी। इनकम टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों को FBR की जानिब से सेक्शन 114 के तहत नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस का इजरा पर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सदर काशिफ अनवर मुमताज़ ने चेयरमैन FBR को खत अरसाल कर दिया है। कहा है कि FBR पहले अपना डेटाबेस को अपग्रेड करे। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अशरफ खान से। जो अशरफ बताएगा क्या मामला है ये। यहाँ पे देखा जाए इनकम टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों को FBR की जानिब से सेक्शन 114 के तहत नोटिस का इजरा हुआ है, जिसे पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के जो सदर है उन्होंने चेयरमैन FBR को जो खत लिख दिया, जिसमें कहा है कि FBR ने इंतकाल कर जाने वाले अफराद को भी टैक्स वसूली का नोटिस जारी कर दिया है और ये शदीद खदशात का इजहार किया है कि कारोबार की बंदिश या मौत की इत्तला FBR को सेक्शन 117 के तहत दी है। इसके बावजूद जो उन्हें टैक्स नोटिस क्यों जारी हुआ है, उम्मीद है कि इन मसाइल को हल करके जारी होने वाले गलत नोटिस को वापस लिया जाएगा। और ये भी साफ कहा है कि FBR पहले अपना डेटाबेस को अपग्रेड करे, IRS में तमाम मालूमात को अपलोड करे, उसके बाद नोटिस जारी करे। इससे जो टैक्स दहनदान को जो है मुश्किलात पेश आ रही है, मुतअद्दिद बार जो FBR को आगाह किया जा रहा है लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया। मुतअद्दिद बार FBR को आगाह किया जा रहा है मगर इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताते चलें कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों को FBR की जानिब से सेक्शन 114 के तहत नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कारोबार के हवाले से खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी के बाद तेज़ी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स 500 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ मंदी के बाद तेज़ी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स 500 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपको आगाह करते चलें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद तेज़ी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 500 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बादल छट गए हैं, तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। स्टॉक मार्केट में सरमाया का सरगर्म है। 100 इंडेक्स में 625 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 59,794 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। आपको आगाह करें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी के बाद तेज़ी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 500 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे अयास राना से। जी अयास बताइएगा। जी बिल्कुल, कारोबार आ रहे हैं और अब तक अगर हम बात करें तो 830 से ज़ायद जो है वो 100 इंडेक्स के ऊपर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और मार्केट में जो कि 60,000 की सतह जो है एक बार फिर बहाल कर रही है। मार्केट में सरमायाकार जो हैं, अब क्योंकि कल जैसे मार्केट के अंदर मंदी देखी गई उसके बाद शेयर्स की कीमतें उनको मुनासिब लगने के बाद जो सरमायाकारों ने एक बार फिर जो है शेयर्स को खरीदारी को तरजीह दी है, जिसके बाद आज मार्केट में इस्तेकाम नजर आ रहा है और एयर एंड की तरफ जाते हुए भी आज मार्केट जो है एक पॉजिटिव नोट की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। मार्केट में कोई ऐसी खबर नहीं है जिसकी वजह से मार्केट मुसलसल गिरावट का शिकार हो। मार्केट पे प्रॉफिट टेकिंग की वजह से जो प्रेशर था उसके बाद से सरमायाकारों ने आज दिलचस्पी दिखाई है, जिसके बायस मार्केट इस वक्त तक जो है वो 830 से ज्यादा जो पॉइंट्स है वो 100 इंडेक्स के ऊपर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं।
100 इंडेक्स पर पॉइंट्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, कारोबार में तेजी देखी जा रही है। अयाज राना अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इंडस्ट्री के लिए सूरत हाल मुश्किल तरीन हो गई। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि शरह सूद बुलंद तरीन सतह पर मुसलसल बरकरार है। इस पर गैस की कीमत में 184% का इजाफा कर दिया गया। बिजली की कीमत भी बढ़ा दी। 9 रोज में 100 इंडेक्स में 7000 पॉइंट्स की कमी हो चुकी है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे अशरफ खान से। जी, इंडस्ट्री इस वक्त शदीद मुश्किलात में, बुलंद शरह सूद है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है। क्या मुतालबा कर रहे हैं हम जानते हैं। नेशनल बिजनेस ग्रुप के जो चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या इंडस्ट्री ऐसी सूरत हाल में चल पाएगी? ज़ाहिर जी इंडस्ट्री के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि मार्कअप के रेट्स आपके सामने हैं कि वो 23% मार्कअप है, उसके ऊपर बैंक का स्प्रेड लगा लें तो ये 24-25% के ऊपर मार्कअप है। तो इतने ज़्यादा मार्कअप में कोई भी इंडस्ट्री चल नहीं सकती, और ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है, इनको तो रनिंग फाइनेंस वगैरह और एक्सपोर्ट रीफाइनेंस जो है वो बैंकों से ही लेना होता है। तो ज़ाहिर है कि वो इतने महंगे फाइनेंस में वो चल नहीं सकते। इसी तरीके से फिर अभी आपने देखा कि 184% जो है वो तकरीबन गैस की कीमतें बढ़ी हैं। एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई 84% बढ़ी हैं। तो इतनी ज़्यादा जब वो गैस की कीमतें बढ़ी हैं, और फिर ये कि अभी और मज़ीद सुनने में आ रहा है कि अभी गैस की कीमतें शायद एक एपिसोड और भी होगा, और बिजली की कीमतों के भी नोटिस आ रहे हैं। और फिर ये कि गैस इस वक्त जो है वो इंडस्ट्री के लिए कराची में तो अप टू फरवरी उन्होंने गैस डिस्कनेक्ट कर दी है। तो इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर है कि इंडस्ट्री के लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, और इंडस्ट्री सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ख़ास तौर पे फिर एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो है, क्योंकि उनको इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करना होता है, तो इनकॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। तो ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इंडस्ट्री के लिए। और फिर मुल्क की जो ओवरऑल सिचुएशन है, अगर अभी आप देखें तो स्टॉक्स में जिस तरीके से पहले रोज़ जंप कर रहा था, और अब उसके बाद जो है तकरीबन 9 दिन में वो 67 से 60 पे आ गया। 7000 पॉइंट वो 9 दिनों में कम हुआ है। तो बज़ाहिर इसकी कोई वजह नज़र नहीं आती। इलेक्शन का भी सिलसिला चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, और उसके लिए नॉमिनेशन पेपर्स भी दाखिल हो गए हैं। इंस्टेबिलिटी भी कोई ख़ास ऐसी मुल्क में नज़र नहीं आ रही, और जो हाई सेंटीमेंट्स थे बिज़नेस कम्युनिटी के, जो हम समझते थे कि हालात आगे बेहतर होने जा रहे हैं, तो उसमें कोई ख़ास ऐसी तब्दीली नज़र नहीं आ रही। उसके बावजूद भी स्टॉक नीचे आ रहा है, फिर एक्सपोर्ट में भी थोड़ा बहुत डिप आ रहा है। तो बहरहाल इस वक्त जो सिचुएशन है थोड़ी सी फिर वापस रिक्लाइन हो रही है। तो देखते हैं सिचुएशन आगे, क्योंकि मुझे लगता यही है कि हालात इंशाल्लाह पाकिस्तान के ठीक हैं, वो ठीक हो जाएंगे। बस एक मार्कअप की बात है, क्योंकि ये जो गैस की कीमतें बढ़ी हैं ना, उससे फिर एक दफ़ा इन्फ्लेशन की सर जाई है। जी, जैसे कि आपने सुना कि अहम तजावीज़ दी हैं, कहा है कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए जो लाइन लॉसेस हैं, बिजली चोरी और गैस की जो लीकेजेस है, उसको बेहतर करना होगा। ऐसे इकदाम उठाने होंगे जिससे इंडस्ट्री चल सके।